everyone, welcome to Mastura classes. This is Sam Arif here, and today we are going to start our 10th chapter of class 7th polity. So, this is your last chapter, Struggles for Equality. So, in this book, you have read about people like Kanta, the Ansaris, Melani, and Swapna. The thread that connects all of these lives is that they have been treated unequally. What do people do when they face such inequalities? History is full of examples of persons who have come together to fight against inequality and for issues of justice. Do you recall the story of Rosa Parks in chapter? Do you remember the photo essay on the women's movement in chapter 5? In this chapter, you will learn about some of the ways in which people have struggled against inequality. So, in short, in this book we have read a lot of people who have faced unequal inequality treatment. So in this book what we have already read that people like Kanta the Ansari who face money struggle against inequalities. Okay, so here we go, here we start from this. As you have already read in this book, the Indian Constitution recognizes all Indians as equal before the law and states that no person can be discriminated against because of their religion, sex, caste, or whether they are rich or poor. So, in this book, you have already read about the Constitution, the Samvidhan, the Ain of this in the of the India, right? So all Indians are equally before the law, and the state is that no person is discriminated against because of their what religion, sex, caste, and rich or poor. All adults in India, they have the equal right to vote during election, and this power of over the ballot box has been used by people to elect or replace their representatives. जो भी adults है इंडिया में, all adults have the equal right to vote. Like vote during elections means कि we have a right to vote during elections. We have a power over the ballot box के over the power, ठीक है, has been used by people. और ये ballot box कौन use करता है? By people, तो elect करने में या अपने representatives को replace करने में. But this feeling of equality that the ballot box provides is because the vote of one person is as good as that of another does not extend to most people's level. As you have read, the increasing privatization of health service and the neglect of government hospitals have made it difficult for most poor people like Kanta, Hakim, Sheikh, and Aman to get good quality health care. These people do not have the resource to afford expensive private health service. Okay, but this the feeling of equality that the ballot box जो provide किया जाता है हमें, because the vote of one person, जो एक person का vote है, is as good as that of another. ये एक जो person का जो vote होता है ये दूसरे is as good, ये इतना good होता है as that of another, दूसरे से बहुत अच्छा. डज नॉट एक्सटेंड टू मोस्ट पीपल्स लिव्स एज वी, जैसे कि हमने पढ़ा है द इंक्रीजिंग प्राइवेटाइजेशन ऑफ हेल्थ सर्विस, इंक्रीजिंग प्राइवेटाइजेशन हुई है हेल्थ सर्विस में, एंड द नेगलेक्ट ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को क्या किया जाता है, नेगलेक्ट हैव बीन इट डिफिकल्ट फॉर मोस्ट पुअर पीपल. और इससे क्या हुआ, जब ये नेगलेक्ट ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हुए तो इससे क्या होता है, हैव बहुत ज़्यादा जो हैव मेड इट डिफिकल्ट फॉर मोस्ट पुअर पीपल, जो भी बहुत ज़्यादा गरीब जो लोग हैं, जैसे कि लाइक कांता है, हाकिम शेख है, एमन टू, इनको कुड ये एडवोकेट अमाउंट ऑफ गुड क्वालिटी हेल्थ केयर नहीं मिल पाती थी, ठीक. बिकॉज दीज जो ये जो लोग होते थे, ये जो रिसोर्स है, ये इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव रिसोर्स और प्राइवेट हेल्थ सर्विस को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं. सिमिलरली द मैन हु सेल्स जूस डज नॉट हैव द रिसोर्स टू compete with all the major companies who sell branded drinks through expensive advertising. Swapna does not have sufficient resource to grow cotton and so has to take a loan from the trader to grow her crop. This forces her to sell her cotton at a lower price.
price. Melanie, likes the millions of domestic workers across the country, is forced to endure the insults and hardship of working as a domestic help because she has no resource to set up something on her own. Poverty and the lack of resource continue to be a key reason why so many people's lives in India are highly unequal. So unequally जो फेस करते हैं like पुअर जो लोग होते हैं, जैसे कि स्वप्ना है जो उसको एडवोकेट अमाउंट ऑफ सफिशिएंट रिसोर्स नहीं मिला था, क्या मीन्स कि ग्रो करने के लिए कॉटन, तो उसका जो अपना जो उसका जो कॉटन था वो उसने जब वो लोकल ट्रेडर को दिया तो उसने वो 15 पर एज यू ऑल रिमेंबर कि उसने वो 15 पर क्विंटल पे उसको बेचा, जबकि वो क्या एक्सपेक्ट कर रही थी 18 पर क्विंटल। तो इसका जो कॉटन है वो बिका वो भी बहुत ही लोअर प्राइस पे। और यहाँ पर दूसरी एग्जांपल दी है मेलानी, जैसे कि लाइक द मिलियंस ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स जो हमारे पूरे अक्रॉस द कंट्रीज़ में है, इनको फोर्स किया जाता है, इंसल्ट की जाती है, हार्डशिप की एंड हार्डशिप मीन्स कि इनसे बहुत ज़्यादा मेहनत करवाई जाती है एंड स्टिल दे डू नॉट हैव डिग्निटी इन द सोसाइटी। तो इन मीन्स कि इन इंडिया जो पॉवर्टी है, बिकॉज ऑफ पॉवर्टी एंड लैक ऑफ द रिसोर्स वी हैव पॉवर्टी मच एंड लैक ऑफ रिसोर्स मच। और इट इज़ द ये जो मीन्स कि ये जो सोर्स है, ये जो रिसोर्स है, इन्हीं की वजह से, लैक ऑफ रिसोर्स की वजह से कंटिन्यू टू बी अ की रीज़न। ये एक की रीज़न है जहाँ पे जो भी बहुत ज़्यादा जो लोग हैं इन इंडिया आर हाईली अनइक्वल। On the other hand, the Ansaris were discriminated against not because they did not have the resource. जो मीन्स कि जो हमने इस चैप्टर में पढ़ा, जो अंसारीज हैं उनको भी डिस्क्रिमिनेट किया गया था, नॉट बिकॉज ऑफ दे डो नॉट हैव रिसोर्स, इस वजह से नहीं कि उनको रिसोर्स नहीं थे। इन फैक्ट डिस्पाइट हैविंग द मनी टू पे द रिक्वायर्ड रेंट दे वर नॉट एबल टू फाइंड एन अपार्टमेंट फॉर ओवर अ मंथ। मीन्स कि दे आर नॉट एबल टू फाइंड मीन्स कि उनको वो अपार्टमेंट नहीं मिल रहा था एक महीने तक। Hope you all remember this thing. People were reluctant to lease them an apartment because of their religion. तो इनके रिलीजन की वजह से इनको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था, उनको एक महीने तक बहुत ये मशक्क़त करनी पड़ी थी बिकॉज ऑफ दिस religion. Similarly, the main reason that the teachers force ओम प्रकाश वाल्मीकि, जैसे कि हमने देखा जो ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं उनको भी कितना ज़्यादा जो टीचर्स हैं उन्होंने फोर्स किया टू स्वीप द स्कूल यार्ड वाज बिकॉज ही वाज दलित। तो उनकी कास्ट की वजह से उनको क्या किया, डिस्क्रिमिनेट किया गया। यू हैव ऑल्सो रेड दैट द वर्क वुमेन डू इज़ ऑफन कंसिडर इज़ लेस वैल्यू दैट देन दैट डन बाय द मैन। मीन्स कि जो ये औरतें हैं उनको लेस कंसिडर्ड माना जाता है एज कम्पेयर टू द मैन। ऑल ऑफ दीज पर्सनस आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट प्राइमरी बिकॉज ऑफ देयर सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड एज वेल एज बिकॉज दे आर वुमेन। तो उनको जो भी मीन्स कि वुमेन्स हैं इनको सोशली कल्चरली बैकग्राउंड से बहुत ही ज़्यादा लेस माना जाता है और डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ अ पर्सन रिलीजन कास्ट एंड सेक्स इज अनदर सिग्निफिकेंट फैक्टर फॉर why people are treated unequally in India. तो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट जो पर्सन्स के रिलीजन हो, कास्ट हो, सेक्स हो, ये एक अनदर सिग्निफिकेंट फैक्टर है क्यों लोगों को क्या ट्रीट किया जाता है अनइक्वली इस इंडिया में, इन इंडिया। Often poverty and lack of dignity and respect for certain communities and groups come together in such powerful ways that it is difficult to identify where one aspect of inequality ends and the other begins. As you have read, Dalit, Adivasi and Muslim girls drop out of schools in large numbers. So if you all remember, like Dalit, Adivasis and Muslim girls वो drop out करते थे school in large numbers में। This is a combined outcome of poverty. तो ये एक combined क्या हो जाता है, ये एक outcome निकलता है किसका, पॉवर्टी का, सोशल डिस्क्रिमिनेशन का एंड द लैक ऑफ गुड क्वालिटी स्कूल फैसिलिटी फॉर दिस कम्युनिटीज। तो इनके लिए क्या होता है, ये एक सोशल डिस्क्रिमिनेट किया जाता है इनको, लैक ऑफ गुड क्वालिटी ये स्कूल फैसिलिटी होती है इन कम्युनिटीज़ के लिए, और इनका आउटकम क्या आता है, एट द एंड दे आर वेरी पुअर। स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी थ्रू आउट द वर्ल्ड इन एवरी कम्युनिटी, विलेज, सिटी एंड टाउन यू विल फाइंड दैट देयर आर सम पीपल हु आर नोन एंड रेस्पेक्टेड बिकॉज ऑफ देयर फाइट फॉर इक्वालिटी। ठीक, तो स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी के लिए कैसे स्ट्रगल किया गया थ्रू आउट द वर्ल्ड, अगर हम देखें इन एवरी कम्युनिटी, विलेज, सिटी या वो टाउन हो, यू विल फाइंड दैट देयर आर सम पीपल, यहाँ पर कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने हु आर नोन एंड रिस्पेक्टेड, जिनको जाना जाता था, जिनकी इज्जत की जाती थी बिकॉज ऑफ देयर फाइट फॉर इक्वालिटी। किसकी वजह से, फाइट फॉर इक्वालिटी, क्योंकि उन्होंने इक्वालिटी के खिलाफ बहुत ज़्यादा लड़ा था। दी
सॉरी इक्वालिटी के लिए बहुत ज़्यादा लड़ा था. दीज पीपल मे हैव स्टूड अप अगेंस्ट एन एक्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और दे फेस्ड और विच दे विटनेस्ड. तो ये जो लोग थे ये खड़े हुए अगेंस्ट एक्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जो उन्होंने फेस की थी और ये इनकी क्या है विटनेस्ड है. और दे मे बी वेल रिस्पेक्टेड बिकॉज दे ट्रीट ऑल पर्सन विद डिग्निटी एंड आर देयरफॉर ट्रस्टेड एंड कॉल्ड अपॉन टू रिजॉल्व इश्यूज इन द community. Often some of these persons become more widely recognized because they have the support or represent large numbers of people who have united to address a particular issue of inequality. In India, there are several struggles in which people have come together to fight for issues that they believe are important. So often क्या होता था, some of the person जो become more widely recognized means कि widely means कि पूरे world में इनको recognition मिल गई थी because they have the support means कि उनके पास क्या था support और represent large numbers of people की थी, लोगों की थी, उनकी unitedness की थी to address a particular issue जैसे कि ये inequality right in India there means कि there are several struggles हुए हैं in which people have come together means कि जिसमें जो लोग हैं वो come together हुए हैं, एक साथ जुड़े हैं to fight for issue they believe are important. ठीक, जिस पे वो यकीन रखते थे कि नहीं ये जो important है, ये जो issue है this is very much important कि इसके लिए हम सबको इकट्ठा होना है, इसके against हमें सबको लड़ना है. In chapter 5 you read about the method used by the women's movement. अगर 5th chapter में आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था वुमेन्स मूवमेंट के बारे में टू रेज इशू ऑफ इक्वालिटी मीन्स कि इसका इशू क्या था कि वुमेन्स को क्या मिलनी चाहिए इक्वालिटी इन एवरी फील्ड ऑफ Sifware. The Tawa Matsya Sangh in Madhya Pradesh is another example of people coming together to fight for an issue. तो Tawa Matsya Sangh in Madhya Pradesh is another example. ये दूसरे example है of people coming together to fight for an issue. किसी एक issue पे झगड़े. There are many such struggles such as those among beedi workers, fisher folk, agricultural laborers, slum dwellers, and each group is struggling for injustice in its own way. तो जितने भी ये सारे groups थे ये अपने अपनी means की struggling कर रहे थे for justice. There are also many attempts to form cooperatives or other collective ways by which people can have more control over resources. जो भी ये cooperatives थे to form ये cooperatives बना रहे थे और other collective ways कुछ ऐसे collective ways जहाँ पे जो भी लोग हैं कैन हैव मोर कंट्रोल ओवर रिसोर्स, जहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको अपने रिसोर्स पे क्या हो ओवन कंट्रोल. तावा मत्स्य संघ. When dams are built or forest areas declare sanctuaries for animals, thousands of people are displaced. तो thousands जो लोग हैं वो क्या हुए displaced हुए. ठीक, whose whole village are uprooted and people are forced to go and build new homes. तो जब dams बिल्ट हुए और फॉरेस्ट एरिया को डिक्लेयर किया सेंचुरीज फॉर एनिमल्स, तो थाउजेंड्स जो हज़ारों से लोग से आर डिस्प्लेसड उनको वहाँ से डिस्प्लेस किया गया. ठीक, तो उन हु विलेजेस आर अपरूटेड एंड पीपल आर फोर्स्ड टू गो एंड बिल्ड न्यू होम्स. तो लोगों को ज़बरदस्ती बोला गया आपको यहाँ से डिस्प्लेस होना है, यू हैव टू डिस्प्लेस दिस प्लेस एंड आफ्टर दैट यू हैव टू बिल्ड न्यू होम्स. ओके, स्टार्ट न्यू लिव्स एल्सवेयर. Most of these people are poor in urban areas to bastis in which poor people live are often uprooted. Some of them are relocated to areas outside the city. Their work as well as their children's schooling is severely disrupted because of the distance from the outskirts of the city to these locations. तो जो भी मोस्ट ऑफ दिस पीपल आर पुअर, तो इसमें जितने भी लोग थे मोस्ट ऑफ देम आर वेरी पुअर और very poor in urban areas to bastis in which poor bastis in which जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीब लोग रहा करते थे are often uprooted, उनको भी uproot किया गया. Some of them are relocated to areas outside the city. Their work as well as their children's school is severely disrupted. तो इससे सारा क्या हुआ उनके स्कूल बच्चों की स्कूल डिसरप्ट हो गए, उनकी मीन्स की जो जहाँ पे जो काम करते थे वो सारा डिसरप्ट हो गए इस डिस्प्लेसमेंट से. दिस डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल एंड कम्युनिटी इज़ अ प्रॉब्लम दैट हैज़ बिकम क्वाइट वाइड स्प्रेड इन आवर
कंट्री। मीन्स कि इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से क्या हो गया कि बहुत सारे जो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो गरीब तबके हैं, उनकी जो लाइफ थी वो डिस्टर्ब हो गई। ठीक, पीपल यूजुअली कम टुगेदर टू फाइट अगेंस्ट दिस। तो इसके लिए तो क्या हुआ, जो लोग थे वो एक साथ जुड़े, एकजुट हुए, क्या करने के लिए, फाइट करने के लिए। देयर आर सेवरल ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस द कंट्री फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। इन दिस चैप्टर वी विल read about the Tawa Matsya Sangh, a federation of fish workers, cooperatives, and organization fighting for the rights of the displacement forest dwellers of the Satpura forest in Madhya Pradesh. So in this chapter you will read about the Tawa Matsya Sangh. ये एक फेडरेशन ऑफ फिश वर्कर्स, कोऑपरेटिव एंड ऑर्गेनाइजेशन फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ द डिस्प्लेस्ड फॉरेस्ट डिवलपर्स ऑफ द सतपुरा इन मध्य प्रदेश में जो हुआ था। Originating in the Mahideva hills of Chindwara district, the Tawa flows through Betul before joining the Narmada is Hoshangabad. ठीक, तो वो इन होशंगाबाद में जो थी। The Tawa dam began to be built in 1958 में जो built हुआ and was completed in 1978 में। तो फाइनल कब कंप्लीट हुआ, 1978 में। इट्स सबमर्ज्ड लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर लैंड। तो इसने सबमर्ज किए थे लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट को, इसने कवर किया था, और एग्रीकल्चर लैंड को। एंड द फॉरेस्ट डेवलपर्स वेर लेफ्ट विथ नथिंग। और जो फॉरेस्ट डेवलपर्स थे वो उनके पास कुछ नहीं बचा था। सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट पीपल सेटल अराउंड द रिजर्वर एंड अपार्ट फ्रॉम देयर मेगा फार्म्स फाउंड अ लाइवलीहुड इन फिशिंग। तो इन्होंने क्या अपना लाइवलीहुड बनाया, फिशिंग का। दे अर्नड वेरी लिटिल, और जिसके बरक्स क्या हुआ, वो बहुत ज़्यादा कम कमाते थे वहाँ उसमें से। इन 1994 द गवर्नमेंट गेव द राइट फॉर फिशिंग इन द टावर रिजर्वियर टू प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स। तो 1994 की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने वो फिशिंग जो करते थे इन टावर रिजर्वियर, उनको क्या दिया, एक तो ये मीन्स कि राइट दिया कि आप क्या करें, फिशिंग करें। दीज कॉन्ट्रैक्टर्स ड्रो द लोकल पीपल अवे एंड गॉट चीप लेबर फ्रॉम आउटसाइड। तो ये क्या करते थे, ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, ये ड्रो करते थे लोकल पीपल को एक साइड एंड गॉट चीप लेबर, और बहुत सस्ते लेबर को लाते थे फ्रॉम आउटसाइड। द कंट्रैक्टर्स बिगिन्स टू थ्रेटन द विलेजर। और जो कंट्रैक्टर्स थे वो उन्होंने शुरू क्या कर दिया, गाँव वालों को थ्रेटन करना, धमकाना। हु डिड नॉट वांट टू लीव, और जो कि क्या करना नहीं चाहते थे, कि अपनी वो फिशिंग लाइवलीहुड को छोड़ना नहीं चाहते थे। बाय ब्रिंगिंग इन hoodlums, the villagers stood united and decided that it was time to set up an organization and go and do something to protect their rights. तो जबकि उनको गवर्नमेंट ने राइट दिया था फॉर फिशिंग इन टावर रिजर्व टू प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स, बट जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो उस चीज़ का क्या उठा रहे थे, गलत फ़ायदा। जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स, उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया, थ्रेटन करना किनको, विलेजर्स को, राइट। तो अब जो विलेजर्स थे वो एक साथ खड़े हुए, उन्होंने डिसाइड किया नाउ इट इज़ टाइम फॉर टू सेट अप एन ऑर्गेनाइजेशन, और अपने जो राइट्स को हमें खुद ही अब प्रोटेक्ट करना। द न्यूली फॉर्म्ड तावा मत्स्य संघ TMS ऑर्गेनाइज्ड रैलीज एंड अ चक्का जाम रोड ब्लॉकेड डिमांडिंग देयर राइट टू कंटिन्यू फिशिंग फॉर देयर लाइवलीहुड। तो फिर क्या होता है, न्यूली फॉर्म टावा मत्स्य संघ एक बनती है, उन्होंने ऑर्गेनाइज करते हैं वो रैलीज, और वो रोड ब्लॉकेट करते हैं और डिमांड करते हैं कि हमारा जो फिशिंग का राइट था फॉर लाइवलीहुड को, उनको क्या करें, उसको फिर से कंटिन्यू करें। इन रिस्पॉन्स टू देयर प्रोटेस्ट द गवर्नमेंट क्रिएटेड अ कमिटी टू एसेस द इशू। तो इस रेस्पॉन्स में जो ये प्रोटेस्ट हुआ, इस रेस्पॉन्स में गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया, उन्होंने क्रिएट की एक कमिटी टू एसेस द इशू, इस इशू को एसेस करें। द कमिटी रिकमेंडेड दैट फिशिंग राइट इज बी ग्रांटेड टू द विलेजर फॉर देयर लाइवलीहुड। तो उस कमेटी ने क्या रिकमेंड किया, जो कि फिशिंग का जो हक है वो ग्रांट की जाए किनको, उन विलेजर्स को जो कि अपना लाइवलीहुड किससे गुजारते हैं, इस फिशिंग सिस्टम से। इन 1996 द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू गिव टू द पीपल डिस्प्लेस्ड बाय द टावर डैम द फिशिंग राइट्स फॉर द रिजर्वियर। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, जो मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने डिसाइड किया 1996 में कि अब हम जो लोगों की जो डिस्प्लेसमेंट हुई थी बाय द टावर डैम की वजह से, द फिशिंग राइट इज फॉर द रिजर्व। तो इनके लिए क्या फिशिंग के राइट को
वापस दी जाए. A 5-year lease agreement who signed 2 months later on January 2, 1997. People from 33 villages of Tawa started for the new year with the first cash. तो on January 2, 1997 में क्या हुआ, एक एग्रीमेंट साइंस हुआ, 2 months later ही हुआ. तो उसमें 33 विलेजेस ने पार्ट लिया और उससे क्या हुआ कि उन्होंने फिर से ये स्टार्ट किया. With the TMS taking over, the fish workers were able to increase their earnings substantially. This was because they set up the cooperatives which would buy the catch from them at a fair price. तो जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उन्होंने क्या किया था ना, स्टार्टिंग में उनको थ्रेटन किया था और कम पैसे देते थे. ऑल दैट मीन्स कि इनक्वालिटी करते थे उनके. जो TMS हुआ, तावा ये तावा डैम संग जो भी हुआ था, उसकी वजह से क्या हुआ कि उनकी जो अर्निंग्स में क्या आए, ये मीन्स कि इंक्रीमेंट आई. ठीक है, जिसकी वजह से वो एट अ फेयर प्राइस पे अपना जो ये फिशिंग सिस्टम था वो कैच कर पाते थे. द कोऑपरेटिव वुड देन अरेंज टू ट्रांसपोर्ट एंड सेल दिस इन द मार्केट वेयर दे वुड गेट अ गुड प्राइस. अब जो कोऑपरेटिव जो थे उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, अरेंज करना स्टार्ट किया ट्रांसपोर्ट को, ताकि जो भी ये फिशेस थी वो कहाँ तक ले जाए जाए मार्केट्स तक, और फिर वहाँ पे एक अच्छे दाम में बिके. They have now begun to earn 3 times more than they earned earlier. ठीक, अब वो कितना ज़्यादा कमाते थे, 3 times more, 3 गुना ज़्यादा कमाते थे जितना वो पहले कमाते थे. The TMS has also begun giving the fish workers loans for repair and the buying of new nets. और जो TMS संग जो थी ये अब क्या देने लगी, फिश वर्कर्स को लोन देने लगी, या जिससे वो अपने उसको चीज़ों को, सामानों को रिपेयर कर सके और ये बाय कर सके नए नेट्स, जाल. बाय मैनेजिंग टू अर्न अ हायर wage as well as preserving the fish in the reservoir, the TMS has shown that when people's organization get their rights to livelihood they can be good managers. तो TMS से हमने क्या सीखा कि जब लोग मीन्स कि एक साथ मिलेंगे, टुगेदर रहेंगे, एक इशू पे मीन्स कि ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, पीपल की जो ऑर्गेनाइजेशन है, नाउ यू कैन थिंक कि वो कितने ज़्यादा मायने रखती है हमारी इस डेमोक्रेसी में. तो जब ये TMS एक साथ खड़ी हुई तो उन्होंने दिखाया कि जो हमारे जो पीपल की जो ऑर्गेनाइजेशन है, दिस इज़ वेरी मच मोर पावरफुल इन आवर कंट्री. तो हमारी इस डेमोक्रेसी में, हमारे इंडिया में जो पीपल्स की ऑर्गेनाइजेशन है, लोगों की जो ओपिनियन है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है. The Indian Constitution as a living document, the foundation of all movements for justice and the inspiration for all the poetry and songs on equality, in the recognition that all people are equal. As you know, the Indian Constitution recognizes the equality of all persons. The जो इंडिया है हमारा, इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट, वो एक जीता जागता डॉक्यूमेंट है. द फाउंडेशन ऑफ ऑल मूवमेंट्स, जो भी मूवमेंट्स थे जस्टिस के, एंड द इंस्पायरेशन फॉर ऑल द पोइट्री या एंड सॉन्ग्स ऑन इक्वालिटी पे जो भी मीन्स की कहे हैं, या मीन्स की जो भी फाउंडेशंस है हमारी जस्टिस की या इक्वालिटी की, राइट. तो एज यू नो, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिकॉग्नाइज हम करते हैं द इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन. मूवमेंट्स एंड स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी इन इंडिया कॉन्स्टेंटली रेफर टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू मेक देयर पॉइंट अबाउट इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल. द फिश वर्कर्स इन द तावा मत्स्य संघ होप दैट द provisions of the constitution will become a reality through their participation in this movement. By constantly referring to the constitution, they use it as a living document. जो कि ये by constantly referring किया गया है, जो ये constitution है, they use it as a living document, एक living document की तरह इसको use किया. that is something that has real meaning in our life. इसका मतलब है कि something is there that जिसके means कि एक real मतलब है हमारी जिंदगियों में. In a democracy there are always communities and individuals trying to expand the idea of democracy and push for a greater recognition of equality on existing as well as new issues. तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, देयर आर ऑलवेज ए कम्युनिटीज, ऑलवेज क्या होती है, कम्युनिटीज होती है, इंडिविजुअल्स होते हैं, वो ट्राई करते हैं एक्सपैंड करना
करना आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, या पुश करते हैं फॉर ए ग्रेटर रिकॉग्निशन ऑफ इक्वालिटी, इक्वालिटी के लिए ग्रेटर रिकॉग्निशन होना ऑन एग्जिस्टिंग एज वेल एज न्यू इशू, या जो है या किसी नए इशू पे. Issues of equality are central to our democracy. In this book, we have tried to highlight issues that pose a challenge to this idea of equality in a democracy. These, as you have read, include the privatization of health service in the country, the increasing control that houses exert on the media, the low value given to women and their work, and the low earnings made by small farmers who grow cotton. These issues substantially affect poor and marginalized communities and therefore concern economic and social equality in the कंट्री. तो इश्यूज जो इक्वालिटी पे है और सेंट्रल टू गवर्नमेंट डेमोक्रेसी, ये एक सेंट्रल पार्ट है किसका, हमारे डेमोक्रेसी का. तो इस बुक में हमने क्या देखा, हमने कुछ वी हैव ट्राइड हाईलाइट, बहुत सारे इश्यूज को हमने हाईलाइट किया जो कि एक मीन्स की दैट पोज अ चैलेंज टू दिस आइडिया ऑफ इक्वालिटी ना डेमोक्रेसी. नाउ यू कैन थिंक जो इक्वालिटी कितना ज़्यादा ज़रूरी है हमारे इस डेमोक्रेसी में. ठीक, this is the core of struggle for equality in a democracy. The dignity and self-respect of each person and their community can also be only be realized if they have adequate resource to support and nurture their families, and if they are not discriminated against. So in this chapter हमने क्या देखा कि जो core struggle था इस पूरे बुक में हमने देखा जो core मीन्स की struggle था वो किस पे था, इक्वालिटी को लेके हमारे डेमोक्रेसी में कैसे. ठीक है, और जो डिग्निटी है, रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट है हर किसी पर्सन की, हर किसी एंड देयर कम्युनिटी, और जो उनकी कम्युनिटी के साथ, तो हमें उनको क्या करना चाहिए, हमें उनको मीन्स की डिग्निटी देनी चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट देनी चाहिए हर किसी पर्सन को, और उनकी कम्युनिटी को. हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि नहीं ये ही इज़ इन्फीरियर देन मी, आई एम सुपीरियर देन हिम, राइट. तो हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, हमें उनको डिग्निटी देनी चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट देनी चाहिए, वेदर जो कि हमसे इन्फीरियर है या हमसे सुपीरियर है. तो हम इस अगर हम पूरे बुक की बात करें, जो कोर स्ट्रगल था हमारा वो था इक्वालिटी को लेकर. हमने ओम प्रकाश वाल्मीकि पढ़ा, हमने स्वप्ना का केस पढ़ा, हमने मेलानी का केस पढ़ा, हमने सारी मीन्स की इन सारी चीज़ों पे हमने हाईलाइट किया. तो इससे क्या हुआ, इससे हमने इतना ही सीखा कि ये जो सारा स्ट्रगल था इसका ये स्ट्रगल किसको लेके थी, इक्वालिटी को लेके थी, कि एवरी कम्युनिटी वांट्स अ जस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी अपने मीन्स की अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने रिलीजन के लिए, अपनी कास्ट के. तो हमने क्या सीखा, जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें पहले ही बताता है कि ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, कानून के सामने हम सारे एक समान है. ठीक, कोई ना कानून से बड़ा है ना हम कानून से लाइक छोटे हैं, राइट. तो इनसे हमने क्या सीखा, मीन्स कि आज के चैप्टर से भी हमने क्या सीखा कि हमें किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, किसी भी फैमिली को डिस्क्रिमिनेट करना चाहिए, ना किसी पर्सन्स को हमें डिस्क्रिमिनेट करना चाहिए. ठीक है, नो मैटर व्हाट देयर कम्युनिटी इज़ एंड व्हाट देयर रिलीजन इज़, और या वो किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, या उनकी कास्ट क्या है, क्या सेक्स है. तो ये सब कुछ अपने हाथ में नहीं होता है, दिस इज़ वेरी नेचुरल, राइट. तो here your 7th class polity is complete. This was your last chapter, so hopefully you all are understandable here. So thanks for watching.